संगत जी, आज इस बात को 1.5 साल हो चुका है। उनके कैंसर का ट्रीटमेंट अब बंद हो गया है और वह बिल्कुल जल का चिट्टा दिता वै, साडे घर नैगेटिविटी नहीं आऊगी। फिर भी ना जाने कई बारी भी इन्नी नैगेटिविटी हुंदी है, बीमार कोई ना कोई हो जाता है, जां किसी काम वास्ते सोचते हैं भी ये हुण अज काम आपां करना है, साडा इस तरह रुकावटां बहुत। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरु जी, लख लख वार शुकराना मेरे गुरु पा। सारी संगत नूं मेरा जय गुरु जी, रूहानी आंटी नूं मेरा जय गुरु जी। पहला मैं अपना मंत्र जाप करदी हां। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ। ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੋਰ ਕਰਵਾਣੇ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਜਾਣੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇਈਓ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੇਟ 'ਤੇ ਛਿੜਕਾਓ, ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਛਿੜਕਾਓ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਲ ਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਐਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਲ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਵੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਵੈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਲ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਈਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਈਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕੀਏ, ਅੱਛੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, क्षमा ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋਤ ਬੱਤੀ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨਾ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁੜੀਆ ਵੀ ਜੋਤ ਜਗਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਇੰਨੀ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਈਓ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਦੀ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦਾ ਵੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਗਾਓ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਠਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਭਗਵਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਸੀਗੇ
ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਕਾ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਆਏ, ਲੇਟ ਜੁੜੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਆਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਮਾਲਕ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਹੀ ਮਹਾ ਸ਼ਿਵ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਕੁਛ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੱਸਦੇ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈਆਂ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਸਵਾਰੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਜੋਗਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਅੱਠੇ ਪੈ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਰ ਵੀ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿਓ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਕੁਛ ਨਾ ਮੰਗੋ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਸਭ ਕੁਛ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ। ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਬੁੱਧੀ ਬਣਾਈਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਨ ਤਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਾ ਨਾ ਰਵੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੀ ਰਵੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਈਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧੇ। ਤੇ ਬਸ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਅਸੀਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਲਿਆ ਕੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤੇ ਚਰਨ ਸਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜੜਾ ਕੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧੁੱਪ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ 15 ਮਿੰਟ ਖੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੁਚੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ, ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਦਿਸਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਜਾਣੀ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਵਧੀਆ ਵੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਖੜਨ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਓਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਮੰਦਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਗੱਦੀ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸੜਕ ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੈ, ਸਕੂਟਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਲੋਕ ਕੋਈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪੇ ਜਾਣੀ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਵੈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਮੇਰਾ ਮੰਦਿਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਹੋਇਆ ਵੈ, ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਡਿੱਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਧਾਇਆ ਆਪਦਾ। ਹਰ ਪਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਇਲ ਛੱਡਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਸ ਮੈਂ ਹੌਲੀ 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 ਦੇਖਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਭੇਜਦੀਆਂ ਵਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਸ ਉਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਲਗਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਇਹੀ ਧਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਪਾਸੇ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਬਸ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖੀ, ਬੁਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੀ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੈ। ਜਿਸ ਉਪਾਏ ਦਾ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਉਪਾਏ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੂੰਗੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਬੁਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਿਓ, ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਲਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰਿਓ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਊਂਗੀ ਸਤਸੰਗ ਲੈ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ, ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਭਰਨਗੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਊਂਗੀ। ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਰੂਹਾਨੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना। दिवाली के पावन अवसर पर सारी संगत को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लक्ष्मी माता और गणपति जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना करने के लिए आज का दिन सबसे उत्तम है। आज दीपावली के पर्व पर हमें राम जी के आदर्शों पर चलने की प्रेरणा मिलती है। राम भगवान जी मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते थे, क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता के वचनों का सदा पालन किया और निस्वार्थ भाव से अपनी माँ की इच्छा पूरी करने के लिए अपना राजसी जीवन छोड़ दिया और कष्ट सहकर भी हमेशा शांत और संतुष्ट रहे। और फिर उन्हें रावण जैसे महाज्ञानी का वध करना पड़ा, क्योंकि रावण ने अपने मन को वश में न रखा और उन्होंने अपने कर्म खराब किए, जिसका उन्हें अपने प्राण खोकर हर्जाना भुगतना पड़ा। संगत जी, हमारा सौभाग्य है कि गुरु जी ने हमें अपनी शरण में लिया और पल पल हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। यदि आप उनके वचनों का पालन करें और अपने कर्मों पर ध्यान दें, निंदा चुगली से बचें, तो गुरु जी आपके कर्म कटवाने में आपका कल्याण करते हैं। संगत जी, मैं अपनी बेटी की तरफ से शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। संगत जी, मेरी बिटिया की शादी अभी से मार्च 2025 में हुई है और गुरु जी की कृपा से सभी काम इतने अच्छे हुए, सुचारू रूप से। हमें पता भी नहीं चला कि किस तरह से उसकी तैयारियां हुई और उसका एक एक इवेंट बहुत ही यादगार रहा। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। आप अपनी संगत का बहुत ध्यान रखते हैं गुरु जी। आप अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। जब मेरी बेटी की शादी हुई, जब तय ही हुई थी, तब हमारे होने वाले दामाद के दादाजी को कैंसर डिटेक्ट हुआ था। तब मैंने गुरुजी का एक लॉकेट जो मुझे एक ब्लेसिंग्स के रूप में सत्संग में मिला था, उनके घर पहुंचा दिया था और मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी, आप दादाजी का ध्यान रखें और ताकि वह अपने पोते की शादी धूमधाम से देख सकें और आप उनको सेहत बख्शें। संगत जी, आज इस बात को 1.5 साल हो चुका है। उनके कैंसर का ट्रीटमेंट अब बंद हो गया है और वह बिल्कुल ठीक है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं आपके दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ जो आपने उन्हें सेहत बख्शी। संगत जी, मेरी डॉटर की बहुत अच्छे परिवार में शादी हुई है। उसको अपने इन लॉज से बहुत प्यार मिल रहा है और उसने भी अपने व्यवहार से सबका दिल जीत लिया है। और मेरी बिटिया काफ़ी क्वालिफाइड है, वो MBA है और शादी से पहले वो जॉब भी कर रही थी। पर क्योंकि उसका ससुराल नोएडा में है, तो उसने कहा कि मम्मा, नोएडा में मुझे जॉब मिलना मुश्किल है, तो शायद मैं जॉब ना कर पाऊँ और हो सकता है मैं कुछ अपना काम करना चाहूँगी। पर मेरे मन में ये इच्छा थी कि वो अभी कुछ समय अपना ही जॉब करे और अभी अपना काम ना शुरू करे। उसको कुछ एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, उसको अभी अपना कुछ जॉब ही करना चाहिए। और संगत जी, आप मानेंगे नहीं,
जहाँ एक तरफ मेरी बेटी ने उम्मीद खो दी थी, उसे एक सडनली पिछले कुछ दिनों पहले उसे एक कॉल, ऑफिस से कॉल आया। कंपनी बहुत अच्छी है और उन्होंने उसको इंटरव्यू के लिए कॉल किया। उसे बहुत ज़्यादा उसको उम्मीद नहीं थी कि शायद वो सिलेक्ट हो पाए या नहीं, पर फिर भी मैंने उसे बोला कि आप ज़रूर जाओ और अपना इंटरव्यू तो दे ही दो। और आप मानेंगे नहीं, वो शॉर्ट लिस्ट भी हो गई और वो फाइनली उसको फाइनल इंटरव्यू के लिए कॉल आया और उसे जॉब ऑफ़र मिल गया। और फिर उसका जो भी पैकेज वो चाहती थी उसे वो पैकेज भी मिल गया। और ये ऑफ़िस उसके घर से, ससुराल से बहुत पास है और जैसा वो चाहती थी उसे वैसा ऑफ़िस मिल गया। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, आप अपने बच्चों का, अपने संगत का आप बहुत ध्यान रखते हैं और आप उनकी मन की इच्छा को बिन कही कैसे समझ जाते हैं गुरुजी। शुक्राना, मेरी बिटिया की तरफ से भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने मेरे पूरे परिवार को ब्लेस किया है, आपने मेरे बेटे को भी ब्लेस किया है। आज वो आप पर, उसका पूरी आप पर आस्था है, आप पर अटूट विश्वास है और हर सिचुएशन में वो अब पॉजिटिविटी ही देखता है और मुझसे ये कहता है, मम्मा इससे भी बुरा हो सकता था। गुरुजी हमारा ध्यान रख रहे हैं और आज उसके पास बहुत अच्छा जॉब तो नहीं है, पर उसे पूरी उम्मीद है कि जैसा वो चाहता है गुरुजी उसको वो जॉब दिलवाएंगे। गुरुजी, आप इसी तरह से अपनी संगत पर कृपा बनाए रखें और हमारा मार्गदर्शन करते रहें और हम आपके साथ, आपके चरणों में हमेशा जुड़े रहें। अंत में मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं आज अपना शनिवार का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, संध्या वेले का। आज धनतेरस का दिन है संगत जी, तो पूरे संगत परिवार को धनतेरस की, दीपावली की, गोवर्धन की, भाई दूज की, सबकी बहुत 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 शुभकामनाएं एडवांस में ही, क्योंकि फेस्टिव सीज़न तो चल ही रहा है और आज धनतेरस है। तो फेस्टिवल्स का, दिवाली का पूरा जो है फेस्टिव जोन शुरू हो गया है और बहुत खूबसूरत टाइम होता है ये संगत जी। तो इतने प्यारे प्यारे हमें त्यौहार देने के लिए और इतने अच्छे से हमारे त्यौहार बनवाने के लिए और भगवान की कृपा से हमें इस लायक बनाने के लिए कि हम त्यौहार मना सकें, उसके लिए आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। संगत जी, दुनिया में ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनके घर पे कोई ट्रेजेडी हो जाती है या फिर वो अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर कोई भी ऐसा रीज़न संगत जी जिसकी वजह से वो लोग अपने त्यौहार हर्षोल्लास से नहीं मना पाते। तो हमें हमारे गुरु महाराज का हर रोज़ शुक्राना करना चाहिए कि वो हमें इतने प्यारे प्यारे तरीके से हमारे त्यौहार मनवा रहे हैं, मनवाते हैं और हमारे इतने बड़े बड़े कष्ट काटे उन्होंने। और गुरुपा, आप उन सब लोगों को भी जो है बहुत हौसला दें जो कि जिनके यहाँ पे त्योहारों की जो महक है वो फीकी पड़ गई है। ये मेरा बस यही है गुरुपा कि उनको भी आप हिम्मत दें और उनके त्यौहार भी बहुत अच्छे से जो हैं मनवाएं आगे हमेशा।
तो हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुपा, जो आपने दिया उसके लिए भी, जो नहीं दिया उसके लिए भी, और जो आप देने वाले हैं उसके लिए भी, और जो आप दे रहे हैं उसके लिए भी गुरुपा। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, हमें अपने साथ जोड़ने के लिए, हमें अपनी मुट्ठी भर संगत बनाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। इस धनतेरस मेरी आपसे बस यही अरदास है गुरुपा कि आप मतलब मेरी लाइफ में है, तो मेरी लाइफ का तो हर एक दिन त्यौहार है। मैं तो यही मान के चलती हूँ मेरे गुरु महाराज, जब से आपने खुद से जोड़ा है हर दिन ही इतना स्पेशल है, हर दिन इतना खूबसूरत है, और हम इतने अच्छे इंसान बने हैं, और आपने हमें इतना प्यार दिया है, आपने हमें इतनी सेलिब्रेशंस दी हैं, आपने हमें इतना इस लायक बनाया है कि हम हर चीज़ को एंजॉय कर पाते हैं खुशी से, पूरे दिल से, और अच्छे से अपने काम भी कर पाते हैं। तो गुरुपा, मेरे लिए तो आपकी मेरी लाइफ में होना ही बहुत बड़ा त्यौहार है, हर रोज़ त्यौहार है गुरुपा आपके आशीर्वाद से। लेकिन आज धनतेरस के त्यौहार पर मैं आपसे यही अरदास करूँगी कि गुरुपा आप अपना आशीर्वाद मेरे और मेरे परिवार पर हमेशा बनाए रखें, क्योंकि हाँ, धन दौलत बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी गुरु महाराज आपका आशीर्वाद है। तो मैं आपसे बरकत मांगती हूँ हमारे घर के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे नज़दीकी लोगों के लिए जो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, हमारी इतनी हेल्प करते हैं, हमारे लिए हमेशा खड़े रहते हैं, उन सब के लिए जो हमसे दिल से जुड़े हुए हैं गुरुपा, जो मुझसे दिल से जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए मैं आपसे बरकत मांगती हूँ। तो बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, हर चीज़ के लिए गुरुपा, हर चीज़ के लिए। और गुरुपा आपको भी बहुत 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 दीपावली की शुभकामनाएं, धनतेरस की शुभकामनाएं, और बहुत अच्छे से जो है आप हमारे साथ, हमारे परिवार गुरुपा आपका ही परिवार है। आप जैसे आप हमेशा कहते हैं कि बेटा मैं ये तेरा परिवार नहीं है, ये मेरा परिवार है, मैंने तुझे खुद से जोड़ा है, तो ये मेरा परिवार है और तू बिल्कुल चिंता मत कर। और संजय जी सच में गुरुपा इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस देके हमें इतना सपोर्ट करते हैं, और इतना हमें मतलब लवेबल फील होता है कि वाओ, कि गुरुपा ने मतलब संगत जी मतलब मेरे परिवार में सब गुरुपा से कनेक्टेड भी नहीं है, लेकिन तब भी गुरुपा मेरे और मेरे परिवार को इतना इतना ब्लेस कर रहे हैं। क्योंकि संगत जी जैसा हम सब जानते हैं कि किसी भी परिवार में से एक भी जना अगर गुरुपा से कनेक्टेड हो जाता है तो गुरुपा उन सब को ब्लेस करते हैं। और सिर्फ परिवार ही नहीं संगत जी, मेरे नज़दीकी दोस्तों को भी गुरुपा बहुत ब्लेस कर रहे हैं। तो उसके लिए भी आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। और जो भी मेरी लाइफ के लिए ठीक लोग नहीं थे वो सब आपने मेरी लाइफ से दूर करे, हटा दिए, कुछ तो बिल्कुल हटा दिए और कुछ बिल्कुल ऐसे डिस्टेंट कर दिए हैं। तो उसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। बस अपनी बेटी की लाइफ में आप ऐसे ही बरकत दीजिए हर फॉर्म में गुरुपा। बरकत का मतलब यही होता है, क्योंकि खाली धन से भी संगत जी कुछ नहीं होता है। खाली धन का भी हम क्या ही करेंगे जब हमारी लाइफ में बरकत ही नहीं होगी। तो इसीलिए मैं गुरुपा से बरकत मांगती हूँ कि मेरे गुरु महाराज पूरी संगत को, मेरे पूरे संगत परिवार को, मेरे प्यारे परिवार को, और जो संगत नहीं भी हैं गुरुपा उनको भी सही राह पे आप लाएं, उनको भी खुद से जोड़ें, उनको भी बुद्धि दें, और जो है उनको भी ब्लेस करें, उनको भी ये जो है उनका लक इतना अच्छा हो, हम आपकी कृपा से जैसे हमारा है कि वो भी आपसे जुड़ पाएँ। और पूरे संगत, मेरे पूरे प्यारे संगत परिवार को जो है गुरुपा आप बहुत 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 बरकतें ब्लेस करें, और बहुत 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 सबके वो मतलब प्यार दें गुरुपा, जैसे आप हमेशा देते हैं, हमेशा दे ही रहे हैं पूरी संगत को। तो ये मेरा पूरी संगत परिवार के लिए, जो मेरा परिवार है गुरुपा, उन सब के लिए जो है मेरी ये अरदास है कि हम सब के ज़िंदगी ऐसे ही खुशी से, त्योहारों से भरी रहे गुरुपा आपके आशीर्वाद से। क्योंकि आप हैं तो सब मुमकिन है, आप हैं तो सब कुछ है, और हम हमेशा आपसे जुड़े रहें गुरुपा। हम तो कौन ही होते हैं गुरुपा, आप हमें हमेशा खुद से जोड़े रखें। हमसे कोई भूल चूक भी हो जाए तो हमें माफ़ करें, हमें सिखाएं, हमें डांटें, लेकिन हमारा हाथ कभी मत छोड़ेगा गुरुपा, क्योंकि आपके बिना तो हम कुछ भी नहीं हैं। और गुरुपा मैं आपसे अरदास करना चाहती हूँ कि त्योहारों में आप तो वैसे हमेशा ही मेरे घर में
हैं, मेरे घर में ही विराजमान हैं, लेकिन त्योहारों में आप भी हमारे घर के आके हिस्सा बनिएगा, हमारे साथ मिठाइयाँ खाइएगा, हमारे साथ पटाखे चलाइएगा, हमारे साथ अच्छे अच्छे कपड़े पहन के हमारे साथ पूजा में बैठिएगा मेरे गुरु महाराज। मेरी बस यही अरदास है कि आप भी, जैसा कि आप बोलते हैं कि कुड़िए तेरा परिवार मेरा परिवार है, तो गुरुपा अपने परिवार की तरह ही मैं आपसे ये अरदास करती हूँ कि अपने परिवार के साथ आप बहुत अच्छे से दिवाली मनाएं। और हमारी दिवाली तो अच्छी मनी जाएगी गुरुपा जब आप हमारे साथ दिवाली मनाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा हर चीज़ के लिए। मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे प्लीज़ क्षमा करें गुरुपा। और संगत जी, मैं बताना चाहूँगी कि मेरे पास गुरुपा के बहुत मैसेजेस भी आ रहे थे कुछ दिन से कि बेटा मैंने तेरे बच्चे का बहुत बड़ा कष्ट काटा है। अब संगत जी, मेरा भाई है जो बिल्कुल मेरे बच्चे की तरह है, और हो सकता है नहीं संगत जी, मतलब यही बात है कि ये सत्संग जो है मेरी मम्मा के लिए भी फ्लैश हो रहे हो सकते हैं, जो गुरुपा ने मुझे सुनवाए, क्योंकि मम्मा थोड़ा मतलब बिज़ी रहती हैं बहुत चीज़ों में, तो जो है वो कभी कभी नहीं सुन पाती हैं। तो जो है गुरुपा ने मुझे वो सत्संग सुनवाए, तो वो मेरे भाई के लिए ही थे संगत जी, कि तेरे बच्चे पे बहुत बड़ा कष्ट है और तू सत्संग सुन और कष्ट कटवा, और दिवाली के टाइम पे उस पे कष्ट है तो तू सत्संग सुन और कष्ट कटवा। तो उसके लिए आपका बहुत शुक्राना गुरुपा। मेरा भाई मेरे छोटे बच्चे की तरह ही है, वो मुझसे 8 साल छोटा है। आप उसको भी बहुत बहुत ब्लेस करें। उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, वो दोस्ती यारी में ज़्यादा रहता है गुरुपा, लेकिन आप हैं तो मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। मैं जानती हूँ कि आप अपने बच्चे को, आप अपने बेटे को, आप अपने छोटे भाई को, आप अपनी बहन के बच्चे को जो है बहुत अच्छे से जो है उसको आप आगे लाइफ में लेके जाएंगे, और उसके ये सब कष्ट ही कट रहे हैं गुरुपा, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। और आपने जो उसका जो भी बहुत बड़ा कष्ट था वो काटने के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना। उससे बहुत भूल चूक हो जाती हैं गुरुपा, और कई बारी से जैसे हम उसको बोलते हैं कि सत्संग में बैठो, और जैसे हम उसको कुछ भी मतलब पूजा पाठ करने के लिए बोल रहे हैं तो वो उतना मतलब नहीं करता। मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो दोस्ती आ रही है और उसकी एज, उसकी टीनेज चल रही है, तो ऐसे टाइम पे जो है गुरुपा बच्चे जो है पता नहीं मतलब ऐसे क्यों रिएक्ट करते हैं, लेकिन वो जो है अपना मन नहीं लगाता है पूजा पाठ में, उसका दिमाग सिर्फ दोस्ती यारी में और बाहर घूमने में और इन सब चीज़ों में होता है। लेकिन गुरुपा, मैं जानती हूँ कि आप जानते हैं कि वो बच्चा है, और जो है आप उसको भी सही राह दिखाएं और उसको भी प्लीज़ क्षमा करें। उससे भी कोई भूल चूक हुई हो तो मैं उसके बिहाफ पे जो है आपसे क्षमा प्रार्थना करती हूँ गुरुपा। और मैं तो जानती हूँ कि आप हमेशा उसके अंग संग हैं, हमेशा उसको प्रोटेक्ट करते हैं, तो उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अब आज भी संगत जी जो है मेरे भाई की पेरेंट टीचिंग मीटिंग थी, तो उसमें हमें पता चला कि वो 3 सब्जेक्ट्स में फ़ेल हो गया है। लेकिन संगत जी वही है कि गुरुपा ने उसका कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा, जैसे कि बहुत दिनों से मैसेजेस आ रहे थे इस रूप में उन्होंने कष्ट काटा। तो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। हमें मतलब दुख हुआ कि वो फ़ेल हुआ है, बट मन में मतलब मेरे एक तसल्ली भी थी कि उसका कोई बहुत बड़ा कष्ट कटा है। बस गुरुपा मेरी आपसे यही अरदास है कि वो पढ़ाई में मन लगाए और बहुत अच्छे से करे, क्योंकि हम उसको अच्छे तरीके से ग्रो करते हुए और करियर में भी और हर चीज़ में हम उसको ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि मेरा छोटा भाई है, हम मेरे बच्चे की तरह है, और जो है मैं बहुत अच्छा जो है उसके लिए चाहती हूँ। तो गुरुपा आप उसको भी बहुत 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 ब्लेस करें जैसे आप हमेशा कर रहे हैं। और कोई भी भूल चूक हो गई हो हमारे परिवार में से किसी से भी तो हमें प्लीज़ क्षमा करें गुरुपा, और बहुत शुक्राना गुरुपा। और संगत जी मैं अभी एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी बहुत ही सुंदर, कि अभी कुछ 3 4 5 दिन से, हफ्ते भी हो सकता है संगत जी, हफ्ते 10 दिन भी हो सकता है, कि मुझे मतलब एक चिड़िया की आवाज़ आ रही थी जो अलग सी थी। अब संगत जी मुझे मतलब ना बहुत टाइम से मैंने तोते नहीं देखे हैं ना, मैंने तोतों की बहुत टाइम से कुछ ऐसे मतलब मुझे पहचान नहीं है कि अच्छा ये कौन सी चिड़िया की आवाज़ होती है। तो संगत जी अभी थोड़े दिन पहले जो है मुझे अपने घर के बाहर हमारे एक बहुत लंबा सा पेड़ है, तो संगत जी उस पे जो है मैंने 2 तोते देखे, 2-3 तोते संगत जी, मतलब 2 तो मैंने देखे ही, एक मैं रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाई कि वो तोता ही है कोई और चिड़िया है, लेकिन संगत जी 2 तोते तो मतलब मैंने देखे उड़ते हुए।
और उन्हीं की आवाज़ संगत जी सुबह शाम गूंजती है मेरे घर के बाहर। और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि वो मेरे गुरु ही हैं, क्योंकि संगत जी मैंने इतने टाइम से कोई भी तोता नहीं देखा है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और हमारी कॉलोनी में होना तो मतलब बहुत अनयूजुअल है। तो बहुत शुक्राना गुरुपा, मेरे घर के बाहर सारी चिड़िया के रूप में आप हैं, आपने पहरा लगाया हुआ है और वो तोतों के रूप में आके भी आप हमें इतना ब्लेस कर रहे हैं। फेस्टिवल्स के टाइम पे जो है इतनी खूबसूरत मतलब ब्लेसिंग दी गुरुपा ने ये फेस्टिव सीज़न के टाइम पे, कि वो उन इतने प्यारे तोते कपल हैं, वो मतलब कपल ही हैं शायद, या मतलब 2 तोते हैं संगत जी। तो मतलब इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स गुरुपा ने दी हैं और रोज़ सुबह शाम जो है उनकी आवाज़ गूंजती है मेरे कानों में। तो उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। मैं जानती हूँ कि आपने वो पहरा ही लगा रखा है मेरे घर के बाहर, हमें ब्लेस ही कर रहे हैं आप और हमारे कष्ट काट रहे हैं, तो उसके लिए आपका बहुत शुक्राना गुरुपा। और आप अपना भी बहुत ध्यान रखिए गुरुपा। आप अपनी संगत के इतने कष्ट काटते हैं, इतने कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, तो आप अपना भी बहुत 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 ख्याल रखिए। और हमसे भी अगर कोई भूल चूक हो जाए तो हमें प्लीज़ क्षमा करिएगा गुरुपा, जैसा आप हमेशा करते हैं। और ऐसे ही प्यारे प्यारे मैसेजेस दे के हमारा हौसला बढ़ाए रखिए गुरुपा, और हम आपकी बहुत अच्छी संगत बने। बस यही मेरी लाइफ का गोल है। तो अब यहीं मैं अपना शुक्राना सत्संग संगत जी विराम करना चाहूँगी और अपने और भी शुक्राना सत्संग जल्दी शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, हर हर महादेव, हैप्पी दिवाली। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना, शुक्राना